Practice makes a man perfect. Yes, this is what we always teach and we always preach. Hello everyone, this is Shivangini. आज हम डिस्कस करेंगे some exercises related to the topic of conjunctions. हमने हमेशा यही रूल फॉलो किया है कि आफ्टर डिस्कसिंग सम थियोरी, सम रूल्स एंड कन्वेंशंस, हम कुछ अच्छे से प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज आपके लिए लेकर आएँ, बिकॉज इट्स एक्चुअली द प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट. So let's get started with our today's practice session on the topic of conjunctions. So you have to fill in the blanks with appropriate conjunction and as you can see there is a box on the top जिसमें आपको conjunctions दिए गए हैं. आपको इन conjunctions को use करना है to fill in the blanks and complete the sentences. तो पहले मैं आपके लिए sentences read करती हूँ. So get ready with your notebook and pen because it's important कि आप भी साथ साथ practice करें, because that way you are going to learn in a better way. She went to the shop, dash, bought some bread. Bindu, dash, her sister is here. The boy, dash, his father have come. She is very rich, dash, she is not generous. He didn't work hard, dash, he passed the exam. So I have solved these for you. She went to the shop and bought some bread. वो दुकान पर गई और उसने कुछ ब्रेड खरीदी. बिंदु एज वेल एज हर सिस्टर इज हियर. बिंदु और उसकी बहन भी यहाँ ही हैं. द बॉय एंड हिज फादर हैव कम. लड़का और उसके पिताजी दोनों आ चुके हैं. शी इज़ वेरी रिच बट शी इज़ नॉट जेनरस. वो बहुत अमीर है लेकिन जेनरस नहीं है. सो ऑल्सो इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर ये कौन सा कंजंक्शन है, यहाँ कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं हम, इसीलिए ये आपका subordinating conjunction है, but is a subordinating conjunction. He didn't work very hard, yet he passed the exam. उसने हार्ड वर्क नहीं किया, फिर भी वो पास हो गया. The film was dash interesting, dash informative. He felt lonely, dash he went to his friend's house. Shall we finish the work, dash watch TV. She is old, dash she works hard. Dash the teacher, dash the students have left. So try to fill in the appropriate conjunctions और उसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपने conjunction यूज़ किया है वो कौन सा conjunction है. वो subordinating conjunction है, coordinating है या फिर correlative है. In this way both the concepts are clear to you. आपको समझ भी आ जाएगा conjunctions का difference और कहाँ पर कौन सा conjunction यूज़ किया जाएगा. That will also be very clear to you. So here we have the solution. The film was not only interesting but also informative. फिल्म ना सिर्फ इंटरेस्टिंग थी लेकिन इंफॉर्मेटिव भी थी. इंफॉर्मेटिव यानी जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले. सो यहाँ पर क्या हुआ है, दो कंजंक्शंस यूज़ किए गए हैं एक ही सेंटेंस में. आपने पेयर यूज़ किया है, तो ये कौन सा कंजंक्शन है? जिन्हें हम पेयर में यूज़ करते थे उन्हें कहा जाता था कोरिलेटिव कंजंक्शन. He felt lonely, so he went to his friend's house. वो अकेला महसूस कर रहा था इसीलिए अपने दोस्त के घर चला गया. यहाँ भी कॉज एंड इफेक्ट है, तो कॉज एंड इफेक्ट वाले कंजंक्शन को क्या कहा जाता है? subordinating conjunction. Shall we finish the work or watch TV? यहाँ दोनों मेन क्लॉजेस को जोड़ रहा है आपका कंजंक्शन, और जहाँ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ा जाए वहाँ पर जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. शी इज़ ओल्ड बट शी वर्क्स हार्ड. वो बूढ़ी हो चुकी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट. ना ही टीचर और ना ही बच्चे अभी चले गए हैं. सो यहाँ भी पेयर यूज़ हुआ, नाइदर नॉर. So whenever a conjunction is used in pair, it is known as correlative conjunction. I bought dash the atlas, dash the dictionary, dash Sunil, dash Tom has written the letter. She has dash a pen, dash a pencil. These products are useful, dash they are expensive. Jane took her umbrella, dash left the room. So I bought both the atlas and the umbrella. मैंने atlas भी लिया और dictionary भी. I bought both the atlas and the dictionary. मैंने atlas भी लिया और dictionary भी ली. Neither Sunil nor Tom
हैज़ रिटन द लेटर। ना ही सुनील और ना ही टॉम ने लेटर लिखा है। शी हैज़ नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल। उसके पास ना ही पेन है और ना ही पेंसिल है। These products are useful but they are expensive. ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत यूज़फुल हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जेन took her umbrella and left the room. जेन ने अपना छाता लिया और रूम छोड़कर चली गई। सो आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन से कंजंक्शंस कहाँ यूज़ होते हैं और इनका हिंदी में मतलब भी क्या होता है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आपको हिंदी में तो पता होता है कि सेंटेंस क्या बनेगा बट इंग्लिश में आप समझ नहीं पाते कि कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा। सो व्हेन यू नो द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ अ कंजंक्शन तो आपके लिए और ईजी हो जाता है टू यूज़ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन इन योर इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश स्पीच। नाउ आई हैव वन मोर एक्सरसाइज फॉर यू। यहाँ भी आपको कंजंक्शन ही फिल इन करने हैं ब्लैंक्स में। छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको सारे कंजंक्शंस पता हैं, उनकी हिंदी ट्रांसलेशंस पता हैं। सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होगा। सो फर्स्टली आई विल रीड द सेंटेंसेस फॉर यू, देन आप अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिए एंड नेक्स्ट विल डिस्कस द सॉल्यूशंस। यू विल नॉट सक्सीड डैश यू वर्क हार्डर। आई वेटेड डैश द ट्रेन अराइव्ड। You will get the prize dash you deserve it. Do not go dash I come dash you say so I must believe it. You will not succeed unless you work harder. जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस नहीं पाओगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। I waited till the train arrived. ट्रेन के आने तक मैंने इंतज़ार किया। इफ़ यू रिमेंबर हम टिल को प्रेपोजिशंस में भी यूज़ करते थे। सो आई टोल्ड यू कि ग्रामर में हमेशा क्लियर डिस्टिंक्शंस नहीं होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। सो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ यू स्पॉट समथिंग लाइक दिस। यू विल गेट द प्राइज़ इफ़ यू डिज़र्व इट। तुम्हें प्राइज़ मिलेगा अगर तुम डिज़र्व करते होगे। देखो अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन पता होगी अगर, तो आपको पता है कि अगर की जगह हम इफ़ यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू, आप ट्रांसलेशन समझो, मीनिंग समझो, देन यू विल बी वेरी easily able to attempt all these questions and also speak in an efficient manner. Do not go before I come. मेरे आने से पहले तुम चले मत जाना। Since you say so, I must believe it. क्योंकि या फिर चूंकि तुमने ऐसा कहा मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। I shall be vexed dash you do that. I did not come dash you did not call me. He's richer dash than I am. Okay, so I think यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। I've already given you the answer, so no issues. We'll move further. Catch me dash you can. He deserved dash succeed dash he worked hard. I shall be vexed if you do that. Vexed का मतलब होता है किसी से इरिटेट हो जाना या annoy हो जाना, गुस्सा हो जाना। So अगर तुमने वैसा किया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। I did not come because you did not call me. मैं इसलिए नहीं आया या मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। He is richer than I am. वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। Catch me if you can. अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। He deserved to succeed for he worked hard. यहाँ for का मतलब है because. वो succeed करना, सफलता पाना डिज़र्व करता था क्योंकि वो परिश्रम कर रहा था। So this is all about conjunctions. हमने conjunctions पे काफ़ी डिस्कशन की, काफ़ी एक्सरसाइजेस की। So I hope अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आगे से जब भी आपको दो बातों को जोड़ना हो, अगर मैं रफ लैंग्वेज में बोलूँ, या दो फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लॉजेस को जोड़ना हो तो आप कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और जैसे आपको हमेशा बता रही हूँ मैं इसी लेक्चर में कि जब कभी डाउट होता है, समझ नहीं आता है कि कहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना है, तो ट्राई टू ट्रांसलेट योर सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंजंक्शन को देख लीजिए। बिकॉज टिल नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द कंजंक्शंस। सो जब आप इक्वली उसको लैंग्वेज में चेंज करेंगे इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू।
So that's all regarding our today's discussion on the topic of conjunctions. Thank you, students.